Hello everyone, this is Simran from HSA Visa World. Today we are here at BAU International University, Batumi campus. Today we have come here with the 45 students who can want to study their MBBS degree in BAU International University. We are here with few old students who have just come here before 15 to 20 days. So let us know what is their experience after coming here. Hello everyone, this is Ridhima and I arrived here 15 to 20 days back and my experience is really great here. The classes are good, the teachers are good, even the campus is good. Hello everyone, this is Ashrit and I also arrived here 15 to 20 days before. The system is so organized and everything is so worth it. It was a good experience overall. Hello everyone, I'm Alina Kashyap. I arrived here around 20 days ago and the university is very good and the teaching staff is very nice. अभी जैसे आप तो आ चुके हो 15 दिन पहले यहाँ पे, so now will you give us a two-year university so that the future students who want to come here can know about the university campus? Yeah, sure. Let me assist you. Over here is our reception and the security area. And this is my student card. Without this, you won't get entry in the university. You just have to tap here. Then here is student support service, which has particular timings, which assists the students like for any of the issues. The first aid area, in case you get injured. We have the academics room, in case you have any problem in your academics. Here is our library, which we'll get each and every books here. Very good ambience where you can study, where you can get all types of books here. Now, this is our reading room. You'll get facilities like your computer. The computers are installed here. This is our cafeteria, ma'am. Okay. So quite nice cafeteria. Yes, it is. Yeah. Do you get proper Indian food here, like what you used to eat in India? Yes, we get veg and non-veg food here. You can also get some packed food here. We all come here after our classes to have a lunch or maybe just for leisure time. And here we have seats. It's very clean area. This is the playing area where we can play any game. It's very nice when you are bored of all the lectures and it becomes hectic. So you can breathe here, have a fresh air. What kind of games do you play here? Football, that is mostly played here. You can play basketball. तो ना यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, तो आप हमें थोड़ा सा कुछ इवेंट्स के बारे में बताओगे? Yes, ma'am. Cultural events, international students come from 25 countries, but India is famous for its diversity. So we get to know about different cultures, different varieties under one roof. That is very good thing about this university, that it brings so many cultures under one roof. अश्रित, चलो अभी हमें इस ब्लॉक के बारे में, आपकी जहाँ यूनिवर्सिटी है बाउ इंटरनेशनल, इसके बारे में कुछ बताओगे, इस ब्लॉक, इस डिपार्टमेंट के बारे में? यस मैम, ये तो मेन एरिया है हमारा. यहाँ पे लेक्चर्स लगते हैं, सेमिनार्स लगते हैं, ऑस्की सेंटर्स हैं. आइए हम आपको टूर कराते हैं. हमारा मेन लेक्चर हॉल है जहाँ पे व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, so then we use this hall. The seats are very comfortable. You can write as well. This has its on the table inside. Okay. So you can use it to write and have a comfortable seat and listen to the lecture. So sir, this is our embryology lab and we can attend our lab lectures here. So this is our one of the seminar rooms and let's have a tour. This is well organized. Here the teacher comes and resolves our doubts. We are made the teams. We have to make our own teams. We have to select our teams and then we have to play the game in teams where the teacher will ask questions. We can also ask our questions if we have any doubt regarding the lecture. We have our cadaver labs nowhere in Georgia, but only here in Batumi we have this cadaver service with us and which give us hand-on service and more detailed information about our body. So you get the practical trainings like maximum, the training that a doctor needs. Yes, in BAU University definitely. यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि सीनियर हैं और उन्होंने हमें बताया कि जैसे इस यूनिवर्सिटी के साथ 15 हॉस्पिटल्स अटैच्ड हैं और प्रैक्टिस तो हमारी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है
और बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। और ये वन ऑफ द रीज़न्स यही था कि हम लोग यहाँ पर आए हैं इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। बाहर जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, बट वहाँ पे अगर चाहे स्टडी इंग्लिश में भी हो तब भी हमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो एक्सेंट होता है बच्चों का इंग्लिश का, यहाँ पे बोलने का, प्रोफेसर्स का, वो हमें समझ नहीं आएगा। तो उसके बारे में आप हमारे बच्चों को कुछ बताना चाहोगे? यस मैम, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे हम उससे यूज़ टू हो जाते हैं। और प्रोफेसर्स भी हमारे बहुत हेल्पफुल हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। लेक्चर के बाद सॉफ्ट कॉपीज़ मिल जाते हैं, तो पीपीटी से और इजी हो जाता है। फिर भी अगर कुछ इधर उधर हो जाता है तो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। सीनियर्स हैं, सीनियर्स विल ऑलवेज गाइड यू, तो मैनेज हो जाता है, स्टडीज़ विल बी मैनेज। एसेंट तो बिल्कुल हर जगह का डिफरेंट ही होता है, बट धीरे धीरे अपने आप अडेप्ट हो जाता है। पर मेरे को पर्सनली इतनी कोई दिक्कत नहीं आई है, इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल। इनफैक्ट जैसे अश्रीत ने बताया, हमें सॉफ्ट कॉपीज़ मिल जाती हैं और साथ साथ पीपीटी भी वो रखते हैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आता है सब कुछ। जैसे एक्सेंट में हमें स्टार्टिंग में जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे हमें आदत होती है ना सुनने की, और जॉर्जियंस भी होती है, हमारी आसानी होती है हेल्प करने में, तो वी गेट यूज टू इट। प्लस टीचर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। द मैटर इज दे आर वेरी फ्रेंडली, दे एक्सप्लेन अस एवरीथिंग। एंड हमें कुछ जैसे डाउट्स भी होते हैं ना, दे डोंट लीव अस अनटिल एंड अनलेस इट गेट्स क्लियर। जैसे हम इंडिया में स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं तो उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि जैसे अगर हॉस्टल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर नहीं है तो हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कैसे मैनेज करेंगे। अब जैसे बाऊ है, बाऊ का यूनिवर्सिटी अलग है एंड हॉस्टल इज़ डिफरेंट, और आप लोगों को आए हुए ऑलरेडी 15 से 20 दिन हो चुके हैं, तो आप लोग इस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हो? एक्चुअली मैम, जब हमारी ओरिएंटेशन हो रही थी तभी हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जो कि यहाँ पे फ्री बस सर्विस है एंड ऑल, और बहुत पॉकेट फ्रेंडली है और बहुत चीप है, ऑलमोस्ट फ्री है। स्टूडेंट कार्ड बना देते हैं लोग और फिर फ्री सर्विस यू कैन एंजॉय। ओके, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट और बहुत ज़्यादा सेफ है। यूजुअली गर्ल पेरेंट्स के दिमाग में ये डाउट आता है बहुत ज़्यादा, मेरे पेरेंट्स के भी आया था, बट इट इज़ रियली सेफ, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। तो आप कभी भी यूनिवर्सिटी से हॉस्टल, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी आ सकते हो अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। एंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाता है इसका मोड। जैसे कि अब हमारे क्लिनिकल्स लग गए यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स के क्लिनिकल्स लगे, कुछ होंगे कैंपस में, कुछ को हॉस्टल जाना पड़ता है। तो इट्स नॉट लाइक टाइमिंग होती है, सुबह लाती है शाम चढ़ते, ऐसे नहीं होता है यहाँ पे। हम कभी भी बस में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, ईजी है वहाँ पे ट्रैवल। या वी डोंट नीड टू वेट। या मैं आप लोगों की काउंसलिंग की थी, बच्चों की काउंसलिंग में ऑलरेडी वहाँ पे इंडिया में कर ही रही हूँ, तो आप लोगों के भी वही सवाल थे जो अब के बच्चों के सवाल होते हैं कि हम जा रहे हैं पेरेंट्स से दूर, हमारा मन लगेगा या नहीं लगेगा। पेरेंट्स का भी यही सवाल होता है कि हम बच्चों को इतनी दूर भेज रहे हैं, पता नहीं वो मन लगाएंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी घर से बच्चों को बाहर भेजा ही नहीं होता, और बच्चे +2 वाले होते हैं तो वो बाहर गए नहीं होते। तो अब आप भी इसी चीज़ को लेकर वरीड थे, अब आप यहीं हो मेरे पास यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो अब आप लोग बताओ आपके मन लग गए कि नहीं लगे? लग गया मन। शुरू में प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स की याद भी आती है, बट जब फ्रेंड्स बन जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये बाऊ में बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, फ्रेशर्स पार्टी होती है, बहुत पार्टीज होती है, अब न्यू ईयर पार्टी आ रही है, तो मन तो लग ही जाता है। मैं भी पहले बहुत नर्वस थी एंड आई क्राइड एज वेल, पर यहाँ पे धीरे धीरे दोस्तों साथ मन लग जाता है। यहाँ पे इंडियंस भी हैं तुम्हारे साथ काफ़ी सारे, और आगे ईयर्स तक रहने वाले, तो दोस्ती भी हो जाती है, मन भी लग जाता है। बीच में होम सिकनेस आती है, बट दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसे ही हो गया था, प्रॉब्लम हो रही थी, बट जैसे कुछ दिन पास हो करेंगे, कुछ दिन हो जाएंगे, तब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली है और टीचिंग भी बहुत प्यारी है, तो मन आराम से लग जाता है। लास्ट हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम यहाँ बाऊ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हैं, एंड द मोस्ट स्पेशल थिंग इज आज हमारे ही एक स्टूडेंट रिद्धिमा का बर्थडे भी है। वेरी हैप्पी बर्थडे रिद्धिमा। अभी आप हमें बताओ कि आप यूनिवर्सिटी में आए हो, तो आपके बर्थडे प्लान्स क्या हैं? कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो? मेरे बर्थडे प्लान्स ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स के साथ हैं। दे मेड माई बर्थडे ऑलरेडी वेरी स्पेशल, और इसके बाद हम थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे, बीच वगैरह जाएंगे, कैफेटेरिया पे स्पेशल फील करवाया ब्राउनी खिलाकर। यस, आई हैड अ लॉट ऑफ फन। पूरी मस्ती चल रही है। यस, बर्थडे है बट एंजॉय कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ, Yes, नो डाउट, yes. बट पेरेंट्स की याद नहीं आ रही। पेरेंट्स की याद तो थोड़ी थोड़ी आ रही है, बट ये लोग मेरा मन लगा देते हैं। इसलिए फिर सो मच अश्रीत, रिद्धिमा, अलीना, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, हमारे बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। ऑल द बेस्ट, वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू एज अ फ्यूचर डॉक्टर्स।